Hmm. Okay, a very good afternoon to all of you. I am Apilang Apum, and I'm working as an assistant professor in Jomintang Government Model Degree College. I'm teaching economics to the undergraduate students. I would like to welcome all the people who are from outside Arunachal, especially like I can see I can see people from Bihar. Thank you so much for joining us. I Even if I don't mention your name, so thank you so much for joining us. And yeah, of course, thank you so much, Dr. Kushbu, for your time, for giving your time, and for willingly, gracefully accepted my request to have this webinar. This is the first webinar that we are doing as a college, and I believe that all of us are going to learn something. We are so excited because we don't have psychology subjects in our undergraduate syllabus. Yeah, so we don't have psychology. And in our university also, it's I think it's just 2 years. The Hello, Dr. Apilang. Kushbu, Yeah. and I can also I'll just like to introduce Kushbu. She is my friend. I want to introduce you to my students. So I am introducing Dr. Kushbu. Dr. Kushbu Mishra has a PhD in psychology with specialization in cognitive psychology from Banaras Hindu University. She was awarded gold medalist at Banaras Hindu University, and she is currently working as assistant professor in PG Center of Psychology, Kaya College, Magad University, Bihar. So she had organized several conferences and webinars many times on the national platforms. She has also several publications on her credit, and she had also been awarded best papers in many of the in 4 conferences and invited lectures at the different places. So we are so happy to have you, Dr. Kusbu, with us. And I now would like to give time to you. Before that, um, I want to make few things that if since this is a basic, we are using a basic Zoom. So if our discussion goes further beyond 40 minutes, we might need to rejoin again in the same link. So please bear with us. And yeah, so over to Dr. Kushbu. Thank you so much. Let me pin my video. Yeah. Hmm. Hello, everyone. I'm really grateful towards the entire JT Government Model Degree College family and also towards my good friend, Ms. Apilang, for giving me an opportunity to address the participants. I hope all of you are doing well and making the best of the time you're getting amidst the lockdown. I'm here to address the issue which is most trending right now. Yes, it is indeed a trending topic because it's not only us who is talking about it. In fact, the entire nation, and for that matter, the entire world is talking about the problem which we shall address today. So, with this brief framework, I'm now introducing the topic, which is the psychological emergency overcoming the hidden pandemic. Let me share my screen. Yeah. I hope you all must be clear that in this session we shall be talking about the common psychological issues which most of us are facing nowadays, underlying causes or reasons behind them, and most importantly on the ways to resolve these problems. Before formally beginning my session, I would like to acknowledge the insights which are developed during the webinar lecture series on mental health, a self-help, seek help, and extend help approach which was coordinated by me and organized in my home institution. Today's presentation, there will be several points where I shall propose the important insights which evolved during the session of the series
about which I just referred. Yeah. The very problem which we are facing today has a central concern about the well-being. Now, what is well-being actually? Well-being is a state of balance. It is a state where we feel comfortable, the feeling which is desirable, and हम सभी उसी situation में रहना पसंद करते हैं. That is the most comfortable position or situation for us. The concept of well-being has several important components which includes physical, psychological as well as social well-being. मैं यहाँ ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये तीनों कंपोनेंट्स का बैलेंस स्टेट में होना बहुत जरूरी है. The absence or underdevelopment of any of these has a huge impact on the well-being of an individual. For example, अगर आपके पेट में दर्द है जो कि एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं करेंगे, जैसे दोस्तों से बात करने का मन ना होना, और न ही आपका माइंड जो कि एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, माइंड में भी बेचैनी रहेगी. उसी तरह अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपके सिर दर्द होने लगता है, जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगते हैं, सिर दर्द होता है, चक्कर आना शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं. और सोशल कंपोनेंट की बात की जाए तो आज के सिचुएशन में जहां लोगों के पास जाकर उनसे मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा या रेस्ट्रिक्शंस है मिलने में, कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस फील करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में दर्द रहता है, कभी सर दर्द रहेगा, कभी पीठ पे दर्द रहेगा, कभी आप अनकंफर्टेबल रहोगे, कभी पैर ही आपके सुन्न हो जाएंगे. ये सब जो रेपरकशंस है, ये सब जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बेसिक जड़ है कि आप लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं. सब चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से. इसका यह भी मतलब है कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे को गवर्न करते हैं. आज हमारा मेजर कंसर्न इज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली वायरस. Now, you can guard yourself from being affected from the virus by practicing hygiene and social distancing. Major hygiene practices being washing your hands several times, using masks, especially when you're going outside, keeping safe distance from others, and keeping a check upon the symptoms of the virus, and seeking help from the medical experts in case of any doubt or symptoms. These safety practices can protect you to a large extent and help you to maintain your physical well-being. The main danger is the psychological problems which are growing and becoming grave day by day. People have started talking about the psychological outcomes, about which we will surely discuss later in the presentation, but the measures taken to combat them were suggested or adopted much later. Recently, psychological researchers have helped us to understand the basic model or the basic structure of this pandemic, which we are referring to as hidden. Just a second. So, अब ये जो फैक्टर्स की बात हम कर रहे थे, क्या क्या मेजर कारक है, क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आप में साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं. तो उसकी मैंने ये जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर जो मैंने वेबिनार किया था उसमें जो पॉइंट्स निकल के आए थे, उससे मैंने ये जिस्ट तैयार किया है. पहला है कंस्ट्रिक्शन इन द फिजिकल स्पेस, स्टेइंग इनसाइड द हाउस. अब एज सच देयर में पहले ये भी कंडीशन हो सकती थी कि आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, 2 दिन अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बेड पे ही रह के आराम से कोई काम नहीं कर रहे थे. बट जब आप पे इम्पोज कर दिया गया कि अब आपको बाहर निकलना नहीं है, ठीक है, किसी ने कह दिया कि आप मतलब लॉकडाउन है, सो यू कैन नॉट गो आउटसाइड, सो यू आर फीलिंग दैट यू आर
इन अ जेल, वो वाली फीलिंग है। और इस वजह से ये जो बंदिश की फीलिंग आ गई है आप में, दिस कि हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, द फीलिंग दैट यू वोंट बी एबल टू एस्केप इज क्रिएटिंग मेजर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स। इनसिक्योरिटी, अब इनसिक्योरिटी ये आ गई है कि कई लोगों की नौकरी जा रही है इस केस में, राइट? उनको काम करने के लिए चीजें नहीं है, या फिर क्या काम करे, फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, साथ में जो जो मूलभूत चीजें थी उनको लेने में लगता है कि अब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कल गए दुकान पे दुकान बंद रहेगा। तो ये सब जो चीजें हैं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट बना रही है कि हम इनसिक्योर है, हम लोग को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान देना है। और ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, स्पेशली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, आप में मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जन्म दे रही है। अब ये वैलिड भी है क्योंकि कई लोगों की, जैसे आप माइग्रेशन देख रहे हैं, मतलब जो वापस आ रहे हैं यूपी बिहार या जहां पे भी लोग काम कर रहे थे, और लेबर सेक्टर्स जो वापस आ रहे हैं, बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी जॉब छूटी होगी या फिर उनको छोड़ के आना पड़ गया होगा, क्योंकि इतने दिन तक बंद रहे, कर्टेल रहे, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कह रही है कि यू जस्ट पे देम द सैलरी, बट कहीं ना कहीं फर्म्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, और इस वजह से आप उनके फाइनेंशियल नीड्स को उतने अच्छे एक्सटेंड तक मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो इमरजेंसी है या फिर ये जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है या साइकोलॉजिकल इमरजेंसी है, ये अराइज होता है। कॉम्प्रोमाइज्ड एकेडमिक एटमॉस्फेयर। अब ये है कि जहां आप क्लासरूम में पढ़ाते थे, प्रॉपर सेटिंग होता था, आपको लैब मिलता था, आपको अपने बोर्ड से एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे सिचुएशन से आप फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते थे लोगों को। अब कहीं ना कहीं आप कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस की बात यह है कि उनको यही नहीं पता है कि एग्जाम कैसे होना है, सिलेबस कैसे कवर होना है, पूरा स्ट्रक्चर उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन से आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, टीचर का उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं दिखा पाते हैं टू द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू इंटरैक्शन। यहाँ पे एक बैरियर है, वो जो वॉल कहेंगे, आपका लैपटॉप या स्क्रीन जो है वो एक वॉल की तरह है। चाहे स्टूडेंट्स का इंटरैक्शन है, स्टूडेंट्स अपनी बातों को कहें या टीचर उनको समझे और उनका जवाब दे, एक इनफॉर्मल सेटिंग को सेटअप कर सके, ये सब चीजें आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतनी कंफर्टेबली नहीं हो पा रहे हैं, और ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा है। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम ड्यूरेशन। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम आप में से कुछ लोग अनुमान लगाते थे 1 महीना, कुछ लगाते थे 3 महीना, कुछ लगाते थे 6 महीना, बट अब ये अनसर्टन है। अब कहा जा रहा है आपको इसी लॉकडाउन के फेज के साथ रहना है, आप अपना माइंड उस तरह ट्रेन करिए, आपको उसी चीज में एडजस्ट करना है। हम लोग अनसर्टन है कि कब ये खत्म होगा, और ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है। आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि कब शुरू हुई, मतलब शुरू हुई तो यू बेटर नो कि हाँ इस पॉइंट के बाद शुरू हुआ जब एक केस नजर आया इंडिया में, बट अब ये कब तक चलेगा लॉकडाउन, या फिर जो हम लोग सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस खुद पे डाले हुए हैं, ये कब तक हमें कंटिन्यू करना होगा, यही नहीं पता है। ये अनिश्चितता जो है कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली हॉन्ट कर रही है, साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कंफ्लिक्ट विद इन द फैमिली मेंबर्स। अब ये हो रहा है कि रिपोर्ट्स बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। ओके, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग एक रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में है। जब एक ही उसमें, मतलब एक ही रूम या एक ही घर में कई लोग एक साथ आ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं एक घर में रहते हुए भी विचारधारा में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, या फिर जो ऊपर मेंशन किया फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी कहीं ना कहीं अनबन बढ़ जाता है। और छोटी से छोटी, और ये भी सिचुएशन समझिए कि हर एक व्यक्ति अपने ही ट्रॉमा में है, ठीक है, और ऐसे ट्रॉमेटिक कंडीशन में जब थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जा रही है, वो बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले रही है। वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है जिससे कि आपको घर में भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट भी है, कहीं ना कहीं ये कॉज भी है बाकी प्रॉब्लम्स को लाने के लिए। अब आते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है मीडिया का। आप दिन भर मीडिया देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, वायरल न्यूज की बात, वायरल वीडियोस जो आ रहे हैं, उनका जो है इफेक्ट बहुत ही ज्यादा। कहीं ना कहीं हम सबको बताया जा रहा है कि इन सब चीजों को आप अवॉइड करिए, नहीं देखिए, बट हम लोग
अपने आप की भाई देखे अपडेट्स क्या है। तो ऐसा करते वक्त हम लोग कहीं कहीं ऐसे चैनल्स को हिट कर दे रहे हैं जो हमारे दिमाग पे एक इम्प्रिंट बना रहे, एक छाप बना रहे कि नहीं बहुत खतरनाक सिचुएशन है, हम कैसे निकलेंगे, गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो, सोसाइटी को ब्लेम कर दो, इस पर्टिकुलर कास्ट क्रीड रिलीजन को ब्लेम कर दो कि इनके वजह से आया है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सोचने की कॉग्निटिवली आपको डिस्टॉर्ट कर रही है। अब एक और चीज इसमें आती है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बात करें तो हम लोग बेसिकली छोटी अगर सी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, उसको भी बड़ा रूप में देख रहे हैं। जैसे अगर घर में, अब यही देख लीजिए, घर में अगर आपके एक अनाज कम है, लाइक सब्जी में कह ले, सब्जी में अगर आपके घर में मिर्चा नहीं है, दैट चिली, ठीक है, तो उसमें आप सोच रहे हैं कि वो मिर्चा नहीं है तब कुछ नहीं हो सकता, अब तो खाना ही नहीं बन सकता। एक छोटी सी राई नहीं है तो आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं सकता घर में, राइट। तो ये जो है कि आप छोटी बात को बड़ा करके देख रहे हैं। जैसे अगर खांसी हो गया है, आपको सर्दी हो गया है, तो उस केस में आप सोचें कि मैं अब कोरोना के ही, मतलब मुझे कोरोना हो गया है, आई एम गोइंग टू डाई, ठीक है। तो ऐसे केसेस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के एग्जांपल होते हैं। ये भी मेजर फैक्टर होता है आपके साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स के लिए। अब ओवरलोड, अब है कि कई नई चीजें आपके पास हो रही है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग। ये हमारे लिए एक कहे कि इंडियन इंडिजिनस ही कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्योरली वेस्टर्नाइज कंसेप्ट है, बट ये टर्म कहीं ना कहीं आप पे थोपा गया है, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ऑनलाइन पूरा सिस्टम हो जाना, मतलब जहां की आप ऑफलाइन कुछ चीजें करते थे, मैक्सिमम चीजें वहां सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं घर के काम, आप घर पे रहेंगे तो तमाम काम आपको नजर आएंगे जो कि आप का करना पड़ेगा, राइट। इफ यू आर एट होम यू शुड डेफिनेटली शेयर द लोड। तो ये कहीं ना कहीं आप पे एक ओवरलोड आ गया, लाइक आपको नए थॉट लेवल पे कहे तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, और फिर प्रैक्टिकल लेवल पे कहे तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग सिस्टम या ऑनलाइन मैकेनिज्म्स या हाउस होल्ड की जिम्मेदारी जो आप पे पड़ गई है, ये सब चीजें आपके ऊपर ओवरलोड हो गया। और कहीं ना कहीं ओवरलोड की वजह से आप साइकोलॉजिकली प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं और चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इस वजह से आप प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं। मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं उनके मेजर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सबसे पहले आ रहा है फियर ऑफ गेटिंग द डिजीज। जिस दिन से कोरोना की बात, मुझे याद है कि मैं अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हैदराबाद में थी, पहला केस आया था कोरोना का, उतना डर नहीं था, बट जैसे ही हम वापस बैक टू गया आए और जैसे ही न्यूज फैलने लग गई, और क्योंकि मैं वहां से आई थी, मतलब हैदराबाद से, एंड आई वाज हैविंग लाइक ड्यू टू एसी और सम अदर फैक्टर मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा था, और उसके जब उसी समय लगभग सुनाई देने लग गया कि कोरोना है, ये है, वो है, एंड आई वाज लाइक हो गया मुझे कोरोना, राइट। तो ये जो फियर है, थोड़े से अगर एक सिम्टम, जैसे आपके सर में दर्द भी है तो उसको आप कोरिलेट कर दे रहे हैं कि हाँ मुझे कोरोना हो गया, राइट। तो ये मेजर कॉन्सिक्वेंस की तरह आ रहा है कि आपको हमेशा ये डर लगा रह रहा है कि मुझे ये डिजीज हो जाएगा, फियर, ठीक है। सेकेंड है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मैंने बताया था जो मेजर कारकों की बात की थी, फाइनेंशियल रहे, ओवरलोड रहे, ये आपको इमोशनली इंस्टेबल, जब आप चीजों को करना चाहते हो, राइट, कई चीजें हैं जिसको आप बहुत मन से करना चाहते हो बट नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आप में इमोशनल नेगेटिविटी आती है, आप समझ नहीं पाते हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। उस केस में इमोशनल इंस्टेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में नजर आता है। एंजाइटी, चिंता जो हमेशा बनी हुई है कि मुझे ना हो जाए, मेरे फैमिली मेंबर्स को ना हो जाए, राइट। होपलेसनेस, क्योंकि हम लोग को टाइम सर्टेन नहीं पता है कि कब खत्म होगा, तो हम में एक निराशा हो गई। अब यही निराशा हर चीज में नजर आने लग गई है, लाइक अगर मैं एक बेटर परफॉर्मेंस, अगर मैं रिजल्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस केस में मुझे लगेगा कि नहीं मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, कुछ भी कर लूं, सब सिचुएशन, जैसे कितना भी गवर्नमेंट प्रयास कर ले, ये सब सिचुएशन कुछ काम नहीं देने वाला, पूरा का पूरा होपलेस सिचुएशन है, कुछ सुधार नहीं होगा, हम सब आखिरकार मारे जाएंगे, ठीक है। होपलेसनेस की चरम सीमा ये रहेगी। देन होता है बोर्डम, मतलब कि आप एक रहते ना कि घर में रहते रहते क्या काम करें, आपने कहीं ना कहीं अपने घर को ही एक्सप्लोर नहीं किया कि आप क्या क्या इस घर में कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि यही चार दीवारी है, ठीक है, यही चार दीवार है
और मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, मैं क्या करूं, वही उठो बैठो सो खाओ पियो एंड देन फिर वापस सो जाओ, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आप में एक बोर्डम की फीलिंग ला रही है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में इसलिए रखना है, मैं मेजर कॉन्सिक्वेंसेस की बात इसलिए कर रही हूँ कि आपको ध्यान देना है कि यही यही चीजें हो रही हैं, और साथ में आपको पिन पॉइंट करना, अच्छा मुझे बोर फील हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे होपलेस फील हो रहा है तो मुझे छोटे छोटे गोल्स करने चाहिए जिनको फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद कहीं ना कहीं होप इवॉल्व हो, राइट। तो इसीलिए मेजर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है फ्रस्ट्रेशन। जब रेपिटेडली आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब चीजों को कर रहे हैं और आपको फेलियर मिलते जा रहा है मिलते जा रहा है, कितनी भी प्रयास करिए आपको लगातार फेलियर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में झिझलाहट महसूस होगी एंड फ्रस्ट्रेशन को जन्म देगा, राइट। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को और ग्रूम करता है या उसको जन्म देता है, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप मोटिवेटेड, अरे कुछ हो ही नहीं सकता तो मैं क्यों फालतू में प्रयास करूं, चलो मैं सो जाता हूँ, चलो मैं निराश हो जाता हूँ, और कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली डिप्रेशन को लीड करेगा, राइट। आप में किसी चीज को करने के लिए कोई रुचि नहीं है, जैसे आप टीचर ने कहा कि अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो नहीं, कोई फायदा नहीं है, एग्जाम तो होना नहीं है, तो इस वजह से प्लांग मैम से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आप नया चेंज है, नई चीज है, तो उसको सीखने का प्रयास, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ गया कॉलेज में मोटिवेट करें कि भाई आप ज्वाइन करिए, कुछ नहीं तो आप आधा घंटा बोर होइए, आप किसी की बकवास सुनिए, कोई बात नहीं, बट आप में एक लगन रहेगी कि हाँ कुछ नया लर्न किया। तो ये मोटिवेशन को कभी भी खत्म नहीं होने देना है, नहीं तो वो आप में और ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देगा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, कहीं ना कहीं दिन भर सोना, आपके पास भरपूर टाइम है तो आप दिन भर सो रहे हैं या बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आने वाला रिएक्शन कब होगा, जब आपको लगातार प्रेशर है, ओवरलोड है, टेंशन है कि कैसे होंगी सिचुएशंस, कैसे हम डील कर पाएंगे। तो उस केस में आप स्लीप डिस्टर्बेंसेस मतलब नींद बिल्कुल नहीं आना, नींद बहुत ज्यादा आना, या फिर नींद में अचानक से कोई खतरनाक सपना देखना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, जो कि आपके मेजर प्रॉब्लम्स के साथ कोरिलेटेड है, उनके साथ संबंधित है। सुसाइडल आइडिएशंस, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इतने ज्यादा डिप्रेस्ड, होपलेस और चीजों को लेके आप मैनेज नहीं कर पा रही, ये वाली फीलिंग आप में आ रही है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप में सुसाइडल आइडिएशन आ जाएगा, मतलब आपको मन करेगा कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूं। कहीं ना कहीं ideation या thought to harm others in the form of domestic violence is also the cause of the psychological problems which I had mentioned in this slide before this. अब आते हैं, एक नया सिंड्रोम है जिसके बारे में मैं खुद वेबिनार अपने सीरीज में ही जानी, लाइक कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम। ये सिंड्रोम आजकल देखा जा रहा है और इसका सिम्टम्स जो है वो सिमिलर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि हमें अक्सर चिंता, सारी चीजों, दुनिया में जो भी चीजें हो रही है उनको आप लेके चिंता कर सकते हैं, लाइक अगर यूएस में कुछ फाइट हो रहा है तो उसको लेके मैं चिंतित हो जाऊं, राइट। तो ये होता है जनरलाइज एंजाइटी, मतलब जनरल कोई भी चीजें हो रही हैं उनसे संबंधित आपको तनाव हो जाना, राइट। तो ये होता है जनरलाइज, किसी भी चीज जनरलाइज थिंग को लेके तनाव होना। अब कोरोना वायरस एंजाइटी सिंड्रोम क्या है, ये है सिमिलर जनरलाइज एंजाइटी से, बट ये बेसिकली कोरोना वायरस के इर्द गिर्द घूमता है। इसको आप कोरोना फोबिया भी कह सकते हैं। इसको सिंड्रोम इसलिए कहा गया क्योंकि इसके डिफरेंट लाइक आपको हो जाएगा, लोगों को हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है, ये सब चीजें या ये सब अगर आपको फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इस सिंड्रोम के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, और जैसे ही आपको लगे कि ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंस मेरे पास आ रहे हैं तो आपको तुरंत या तो अपने खुद के कुछ टेक्निक्स यूज करने चाहिए, सेल्फ हेल्प टेक्निक्स, जैसे कुछ हॉबीज को नर्चर करिए या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज करिए, या फिर मेडिकल एक्सपर्ट से बात करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट दैट इज ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है, आरसीआई अप्रूव्ड, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनसे हेल्प कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाउंस बैक मैकेनिज्म्स, बेसिकली मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि लाइक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहले आप एक सामान्य स्थिति में थे और ये सिचुएशन कोरोना वायरस के आने के बाद आपका बहुत ज्यादा टेंशन और आप में स्ट्रेस आ गया है, और बाउंस बैक मींस अगेन आपको उस सिचुएशन में हमें वापस ले आना है, इसीलिए इसको
बाउंस बैक मैकेनिज्म की मैंने टर्म दिया है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए, अब आपको बाउंस बैक करना है तो उसमें आप क्या क्या छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे जिससे कि आप प्रॉपरली बाउंस बैक कर जाएं और ज्यादा हरासमेंट या फिर ज्यादा तनाव आपको महसूस ना हो। इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि अक्सर पता है ये अभी ही नहीं, पहले भी हम अपने बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल, वही वेबिनार में एग्जाम्पल सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, एक स्पीकर ने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप इंडिया के बारे में 2 लाइन लिखिए या फिर 10 लाइन लिखिए, ठीक है, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप डिस्क्राइब करके 10 लाइन लिखिए, राइट, तो आप बहुत ज्यादा इजीली डिस्क्राइब करके लिख देंगे। पर कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है, मतलब आप क्या है, आप लास्ट 10 मिनट्स है, इसके बाद अगर सेशन टर्मिनेट होता है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, ठीक है। अब इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस की बात की जाए ना, तो इसमें होता है कि हम कभी अवेयर ही नहीं रहे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मेरा मतलब मैं औचित्य क्या है, या फिर अल्टीमेटली मेरा मुझे क्या पसंद है, ये सब चीजें कभी हम ध्यान ही नहीं देते। कभी हम ये भी नहीं सोचते कि मतलब मैं अपनी बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक। तो ये सब चीजें सेल्फ अवेयरनेस में होती है। इसमें होता है कि खुद को ऑब्जर्व करना, आंख बंद करिए और अपने पूरे शरीर में हो रहे गतिविधियों को या फिर जो भी चीजें आपके शरीर में महसूस हो रही है उनको फील करके आप अवेयर होइए, अपने बारे में जानिए, अपने थॉट्स को देखिए, कभी ना कभी एक जगह पे स्थिर हो जाइए और फिर सोचिए कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, और कभी पेन डाउन करिए, लिखिए उसको, तो आप पाएंगे कि आप क्या क्या सोचने लगते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाती है, आपका खुद के प्रति माइंडफुल होना, लाइक अपने लाइक्स डिसलाइक्स, आप कौन है, इन सब चीजों की जानकारी आपको होने लगती है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, बहुत बड़ा ये फैक्टर है। क्या होता है ना, जब हम तनाव में होते हैं या नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है तो आप लोग अपने स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं। लाइक आपको यही नहीं पता कि आपकी शक्तियां क्या है, आप किन चीजों में बेहतर है, ठीक है। इसमें या तो आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं या फिर जो पहला स्टेप हमने कहा सेल्फ अवेयरनेस का, कि मतलब आप अपने बारे में ध्यान दीजिए कि मैं किस चीज के लिए बेहतर हूँ। हो सकता है कि आप सारी चीजों में अगर 100 चीजें हैं जिसमें से 20 to 40 to 80 चीजों में आप ठीक नहीं है, ठीक है, बट 20% चीजें तो ऐसी होंगी जिसमें आप बहुत अच्छे हो, तो उन पे फोकस करिए और उनको एनहांस करने की कोशिश करिए। अपने स्ट्रेंथ को आगे लाइए, अपने स्ट्रेंथ को फोरफ्रंट में लाके उसके बारे में काम करना शुरू करिए। ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव फीलिंग देगा, कहीं ना कहीं आप उन नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे। अब डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज, अब है कि अब आपको पता चल गया कि आपके ड्रॉबैक्स क्या है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है। अब इनमें से जो मैंने प्रॉब्लम्स पिछले साइड में बताए हैं, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 या सारे प्रॉब्लम्स आप सब में होंगे, राइट। तो आपको पता है जब आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आपको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन ढूंढना है, कहीं ना कहीं हम लोग को पॉजिटिवली वर्क करना है। इस सिचुएशन में हम लोग को, इस सिचुएशन से हम लोगों को पॉजिटिवली निकल के बाहर आना है, राइट। तो आपको स्ट्रेटेजीज, जैसे आपको लगे आपके पास बहुत टाइम है, कुछ हॉबीज पाल लीजिए। अब नहीं कभी कोई हॉबी रहा है आपका, तो भी आप एक हॉबी करने की कोशिश करिए कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। लाइक रीडिंग मैंने कभी नहीं किया तो मैं चलो आज से एक किताब रीड करना शुरू करता हूँ। राइटिंग या पेपर मेरा पीएचडी के दौरान ही मैंने लिखा था या फिर एक सिचुएशन था तभी का लिखा हुआ है, तो अब चलो अब मैं उसको करना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, आपको अगर टाइम ही बहुत है तो घर में ही कुछ नया रेसिपी ट्राई करिए। बहुत सारे लोग रेसिपीज पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, दैट इज अ पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसपे कि आप वर्क कर रहे हैं और अडेप्ट करने की कोशिश करें। अब ये है कहा गया कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस चेंज के साथ। क्या पहले था कि प्रोबेबली कोविड का सिचुएशन चला जाएगा, बट अब माना जा रहा है कि ये सिचुएशन इतना जल्दी नहीं जाएगा, या फिर हो सकता है कभी नहीं जाएगा। आपको अपने स्ट्रेटेजीज या अपने आप को उस तरह से तैयार करना है। फिजिकल लेवल पे आपको जो भी हिदायतें दी गई हैं या सजेशंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और बाकी अपने लेवल पे आपको क्या स्ट्रेटेजीज, कुछ नया तो सीख के लाइए। जैसे अभी हमें टीचर्स की बात की जाए, मेरे कॉलेज में एज सच पुराने टीचर्स, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने इतने बेहतर ढंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज किया कि मैं खुद अचंभित रह गई, ठीक है, कि वाओ
दैट वाज अ सिचुएशन फ्रॉम मी। हम लोग नए टीचर्स तो कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये जो नेगेटिव आप स्ट्रैटेजीज को मतलब जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर को हटाने के लिए जो आप नए नए तरकीबें या नए नए एक्टिविटीज करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी मदद करते हैं अडेप्ट करने में या सिचुएशन को पॉजिटिवली लेने में। आप डेवलप सोशल स्किल्स जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहना है, जो कि पहला पॉइंट बार बार आपसे कह रहा है। आपको दूसरों के इमोशंस के प्रति सेंसिटिव रहना है। जैसे आप घर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो अर्निंग मेंबर है, ठीक है, वो बहुत तनाव में है, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से तनाव है। हो सकता है फाइनेंशियली। आपके जो घर में लेडी है या फिर जो घर में काम करते हैं, लेडी या जेंट जो भी घर में काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कोरस संभाल रहे हैं, उनमें तनाव होगा कि अचानक से इतना ज्यादा लोड हो गया, सब घर में ही हमेशा रह रहे हैं, फरमाइशें बहुत ज्यादा हो रही हैं चीजों को लेके, दैट आई वांट टू ईट दिस थिंग, आई वांट दिस थिंग। तो उस केस में आपको उनके प्रति सेंसिटिव होना होगा, एम्पैथेटिक होना होगा कि अगर मैं उस सिचुएशन में रहती तो मेरे साथ मुझे कैसा महसूस होता, राइट। आप जो माइग्रेशन का देख रहे हैं कि लोग पैदल निकल आ रहे हैं, आपको उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब इसके लिए कहा जा रहा है कि लोकली डेवलप करिए। आपने रिसेंटली स्पीच सुना होगा प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे आपको सशक्त होना है, ठीक है। उसके लेवल पे आपको ध्यान देना है, लाइक आपके आस पड़ोस की दुकानें हैं उनको ज्यादा अवेल करिए, न कि आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करिए या फिर आप बड़ी दुकानों में चले जाएं, जो फुटकर रिटेल स्टोर्स है वहां पे आप जाइए। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे लोगों के प्रति, या फिर जो अपने आस पड़ोस रह रहे हैं उनकी मदद कर पाएंगे किसी न किसी तरीके से। ये होता है एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात। पॉज एंड लुक अराउंड। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी थी कि किसी को एक दूसरे को देखने की फुर्सत ही नहीं थी, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। एक टीचर कह लो तो उसको पढ़ाना था, एक स्टूडेंट कह लो उसको पढ़ना था, क्या हो रहा है आसपास कोई मतलब नहीं। जानकारी रखो तो बेहतर, न रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब जो मौका है ना, वो मौका यही है कि आप एक सेकेंड के लिए, नेचर आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई रुको, वेट फॉर सम टाइम एंड पॉन्डर कि क्या चीजें हो रही हैं आसपास, उसको देखिए। तो ठीक है, आप अपने अंदर ही देखिए कि ऐसा ही नहीं कि आपको आसपास ही देखना है, आपको अंदर भी देखना है कि भाई मेरे अंदर क्या है, मैं किस दिशा में जा रही हूँ, राइट। क्या मैं इसीलिए बनी हूँ, क्या मैं एज ए टीचर बस क्लासरूम टीचिंग के लिए ही बनी हूँ, ठीक है। ऐसे एक बच्चा सोच सकता है, क्या मैं बस मतलब कुछ खेलने कूदने के लिए बना हूँ, या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, क्या मैं क्या सोचता हूँ फ्यूचर को लेके, राइट। ये क्षण आपको मिला है, ये आपको पूरा यूज करिए इसको सोचने में कि आप फ्यूचर से क्या चाहते हैं, या फिर आप आने वाले सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं, राइट। तो ये आपको बहुत मदद करेगा कोप करने में। देन ईट वेल, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन, शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है, वैसे एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर को जन्म देगा, राइट। ये वाइस वर्सा काम करता है। तो आपको इस समय ये ध्यान देना है कि आप संतुलित खाना खाएं। एक्स्ट्रा खाना आपको बिल्कुल नहीं पचेगा, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अगर आप घर का काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप घर का काम कर रहे हैं तो आप बराबर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज कर रहे हैं। बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन मतलब जैसे आप खाना खा रहे हैं and you're not able to maintain your health, then you should definitely ponder कि क्या करें जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए और जो हमारा डाइट है वो प्रॉपर रहे। लास्ट है रिमेन सोशल, ठीक है। अब रिमेन सोशल से तात्पर्य ये है कि आपको लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। लोगों से दूर रहना है, ऐसा नहीं कि लोगों से ही दूर हो जाना है, मतलब कि आप सोशल प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से इंटरेक्ट करिए। जैसे टीचर्स एक मीटिंग कर ले, स्टूडेंट्स के साथ हम लोग लगातार मिलते रहें, या फिर अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के साथ आप लगातार बात करते रहें। तो ये एक तरह से आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देगा, एक एफिलिएशन देगा, एक आपको एक पॉजिटिविटी। जैसे आप उनका हाल जानेंगे, अपना हाल जानेंगे, तो जानेंगे कि भाई सब परेशान है, तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलेगा, राइट। अभी the further list of tips and tricks include like social distancing, old wine in a new bottle. Why I'm saying it in such a way?
आप यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन someone dies in your house, like किसी का देहांत हो जाता है, कोई मर जाते हैं, तो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग दैट 13 days. लाइक हम लोग हिंदू कल्चर, यू आर बेसिकली इन दिस नॉर्थ बेल्ट, वी फाइंड दैट घर को, लाइक वहां जो लोग होते हैं वो अपने आप को 13 दिन के लिए सबसे अलग कर देते हैं. या फिर व्हेन यू गिव बर्थ टू अ बेबी, राइट, तो उस केस में कहा जाता है कि टिल 1.25 और सम पीरियड 1 month or so, the mother and the child must stay away from the other people, right, to keep the sacredness of the baby. Like रहता है ना कि उसको कोई डिजीज ना हो जाए, किसी तरह का रोग ना हो जाए, या फिर जब फैमिली कहीं क्या किसी क्या डेथ होती है तो उसको ग्रीव करने के लिए उस चीज को प्रॉपरली अपने दिमाग से रहता है सोच के आप उसको प्रॉपरली निकाल पाए, इसके लिए आपको डिस्टेंस कर दिया जाता है बाकी लोगों से, राइट. तो कहीं ना कहीं हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग इंडियंस बेसिकली इसको किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, राइट. तो ये आपको पहले ध्यान देना है कि इट इज जस्ट अ न्यू, दिस इज अ ओल्ड कंसेप्ट इन अ न्यू, मतलब जैसे रहता है ना कि बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बट इसको हम लोग पे बस एक लेबल करके प्रेजेंट किया गया है. ये कोपिंग स्ट्रेटेजी की तरह इसलिए है क्योंकि आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम तो इसको करते आए हैं, राइट. लाइक हम लोग कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस करते आए हैं, तो इट इज नॉट समथिंग न्यू या समथिंग वेरी यूनिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सोशल डिस्टेंसिंग हमारे कल्चर में ऑलरेडी पहले से करते आए हैं हम लोग, राइट. अब आगे बढ़ते इंफॉर्मेशन ओवरलोड. जो मैंने बताया था बात की, वायरस है, ये सिचुएशन वायरल न्यूज का है, या फिर मीडिया बहुत ज्यादा आप न्यूज देख रहे हैं, या फिर आपके दोस्त है, या फिर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सबसे आपको तमाम जो न्यूज मिल रहे हैं या इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, ये एक तरह से ओवरलोड कर दे रहे हैं आपको, एंड दे आर क्रिएटिंग अ बर्डन. जो आपके मैंने बताया था इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जा रहा था, या फिर आप वायरल न्यूज पे ज्यादा विश्वास कर रहे थे, तो अपने आप को अगर आपको सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग से खुद को बचाना होगा. यू नीड टू कट शॉर्ट कि हाँ भाई, दिन में हम बस एक बार न्यूज देखेंगे, जिससे कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास ना आए, राइट. उसके बाद मैग्निफिकेशन स्टॉप करिए उसको. लाइक आप छोटे चीज को एक बड़े स्तर पे मत देखिए. ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि मैं ही रीजन हूँ सब चीज के लिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल कम्युनिटी ही रीजन है इस चीज के लिए. ये चीज आपको अपने दिमाग से निकाल देना है. या फिर स्पेसिफिक कंट्री है, ठीक है, दोष होंगे या रीजंस होंगे, बट उस चीज को मैग्नीफाई कर देना आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ला देता है, ठीक है. आप सोचते हैं कि नहीं उसी वजह से है, हेट्रेड आएगा, नेगेटिविटी आएगी, तो ये कहीं ना कहीं आप है, आप अपने पास एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये सब चीजों को मतलब और ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं, अपने लिए नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं. इस चीज को आपको तुरंत स्टॉप करना होगा. चीजों को जैसे है वैसे रहने दीजिए. डू नॉट ट्राई टू मैग्नीफाई अ इश्यू विच इज नॉट सो डिफिकल्ट या सो वेरी which is absolutely normal, okay, which is not so grave. देन स्टॉप सेल्फ ब्लेमिंग. कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ चीजें हो रही हैं, या फिर मैं ही घर में प्रॉपर फाइनेंशियली वो नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मदद नहीं कर पा रहा हूँ लोगों का, या फिर मैं तनाव में हूँ इस वजह से सब परेशान हो रहे हैं, या फिर मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है तो इस वजह से बाकी लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दीजिए. ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें सब कोई, आप, हम, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें ब्लेम गेम खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आपको अपने आप को इस गिल्ट से निकालना पड़ेगा, राइट. अपने आप को ब्लेम करना छोड़िए. आप हर चीज का, हर प्रॉब्लम का कारण नहीं हो सकते, ओके. ये चीज आपको ध्यान देनी है. लिबरेट योर माइंड एंड स्टॉप फीलिंग लाइक बीइंग ब्लॉक्ड. आपको फिजिकल लेवल पे ब्लॉक किया गया, लाइक आप बाहर नहीं जा सकते, आपको 4 दीवारी के अंदर रहना है, राइट. दे हैव ब्लॉक्ड यू इनसाइड योर रूम, नॉट you, they have not blocked your mind. You can just fly. आपको जो सोचना है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, या तो फिर आप दोस्तों से बात करिए, कुछ हॉबीज क्रिएट करिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ वीडियोस बना लीजिए. टिकटॉक पे कितने बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, राइट. तो ये आप अपने आप को क्रिएटिविटी, जो आपका क्रिएटिविटी आपके अंदर का हिडन टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करिए और अपने माइंड को लिबरेट करिए, थोड़ा फ्री छोड़िए, राइट. तो ये कहीं ना कहीं आपको, जब आप फ्री छोड़ेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो पॉजिटिविटी फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो ये आपको एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वेलबींग की तरफ ले जाएगा.
मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। अब ये जो टाइम आपको मिला है इसका पूरा यूज करिए। आपको आज जो टाइम मिला है शायद ही अपने लाइफ में कभी मिलेगा। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, तो आप पाएंगे कि उनकी लाइफ में भी ऐसा कभी सिचुएशन आया ही नहीं। कितने इमरजेंसी उन्होंने देखे होंगे, बट ऐसी इमरजेंसी जिसमें कि सब कोई परेशान है, सब कोई अफेक्टेड है, एंड दे आर लॉक्ड इनसाइड देयर रूम, दे हैव नथिंग एट ऑल टू डू। तो ऐसे केस में आपको बेस्ट यूज करना है टाइम का। जो हॉबीज है उनको इवॉल्व करिए, पूरा खोज डालिए अपने आप को, पूरा एक्सप्लोर करिए। एवरी बिट ऑफ योर पर्सनैलिटी मस्ट बी एक्सप्लोर्ड सो दैट यू आर एबल टू गेट योर 100% the best form of you, and you are making the best use of the time which you are being given. फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको बहुत जरूरी है हर एक चीज के प्रति थैंकफुल होने की, राइट? अभी लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ गई, ओ माय गॉड थैंक यू, राइट? तो ऐसी सिचुएशन है कि छोटी छोटी सिचुएशंस में, छोटी छोटी एग्जांपल्स में आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, राइट? जैसे अगर आपके टीचर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको उनके लिए थैंकफुल लेना होगा। स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए थैंकफुल होना होगा। जो आपके डॉक्टर्स, नर्सेस, रेगुलर आप जो ये गवर्नमेंट स्टेप्स दिया था ना कि यू नीड टू पैट योर, ये क्लैप है, क्लैपिंग करना है या फिर दिया जलाना है, दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ फीलिंग, एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट? मतलब आपको एज सच कुछ हो नहीं जाएगा, अचानक से कोरोना गायब नहीं हो जाएगा कि आप जब ताली बजाएंगे या फिर जा कोरोना जा कहेंगे तो चीजें चली जाएंगी। बट कहीं ना कहीं क्लैपिंग फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, be it like the हेल्थ एक्सपर्ट्स रहे, फिर हाइजीन के लिए जो काम कर रहे हैं, सैनिटरी वाले, तो उन चीजों को आप जब करते हैं तो उनको अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं आप अपने तरफ से उतना ही कंट्रीब्यूशन कर पाए, तो आपको ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग कभी नहीं जान देनी है। जैसे घर में भी आप पाते होंगे कि आपके लिए लोग काम कर देते हैं, आपके एब्सेंस में चीजें हो जाती हैं, तो आपको उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए, राइट? ये ग्रैटिट्यूड की जब फीलिंग आप में रहेगी तो आप नेगेटिविटी से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि आप ना सेल्फ ब्लेम करेंगे ना किसी और को ब्लेम करेंगे, उल्टे सभी को आप थैंक यू कहेंगे, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू पॉजिटिविटी। अब मैंने एक माइंडफुल क्लिनिक और उसका बेसिकली रेफरेंस मैंने पाया था अपने यहाँ जो वेबिनार कराया था, उसमें मैंने देखा था एक स्पीकर ने इसको मेंशन किया था कि पेंडेमिक को इन्होंने कुछ अलग ढंग से प्रेजेंट किया, राइट ना? आप एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। पेंडेमिक का जो एक एक वर्ड है अल्फाबेट आई मीन टू से, उस पे आप ध्यान दीजिए। पी से इन्होंने कहा प्रेजेंट मोमेंट, और मैंने ऐड कर दिया प्रिवेंशन, राइट? प्रिवेंशन इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप। आपसे कहा गया है कि भाई आपको अपने घर में रहना है, आपको ये जो टिप्स बताए गए हैं कि हाथ धोइए, मास्क पहनिए, लोगों से दूर मेंटेन करिए, एक डिस्टेंस रहना चाहिए आप जब बात करें लोगों से, तो ये सब प्रिवेंशन की बात है। जब आप प्रिवेंशन करेंगे तो आप पेंडेमिक से कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। अब जो उन्होंने दिया था उसमें था, उन्होंने कहा था कि दैट माइंडफुल क्लिनिक गिव द कंसेप्ट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? अभी क्या हो रहा है, this moment, that is becoming aware of whatever is happening around you and within yourself. mindfulness के concept के बारे में ही है ये, कि आपको aware हो जाना है अपने आसपास वाली चीजों के प्रति और खुद की चीजों के प्रति। नेक्स्ट A for acceptance। अब जब आप aware हो रहे हैं, साथ ही आपको accept भी करना होगा, राइट? जैसे आप जब अगर किसी चीज में बदलाव, जैसे अगर मैं एक स्मोकर को कहूँ कि आप स्मोकिंग करते हो, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, डिनाइल के मोड में कि नहीं मैं स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ, मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। तो अगर आप उसमें चेंज लाना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ या बोलता ही नहीं हूँ, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको सच बोलने पे आप प्रेरित नहीं कर पाएंगे, नहीं कुछ ऐसे स्टेप्स कर पाएंगे जिससे कि वो सच बोलने लगे। तो पहला स्टेप होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करना सिखाइए, लाइक मैं ये काम करता हूँ जो कि एक हैबिट में है और ये गलत है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसमें चेंजेस ला सकेंगे, राइट? तो अभी के सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये सिचुएशन रहने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज सो इजीली, दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। when you have accepted this situation, only then you will be accepting कि हाँ मुझे जो changes लाने हैं वो लाना बहुत जरूरी है, साथ में मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, हाइजीन वाला कल्चर को बढ़ाना है, राइट? अब आते हैं N स्टैंड फॉर नर्चर। नर्चर मीन्स अपने आप को अच्छे से डेवलप करना, लाइक रहता है ना कि
You already have so many qualities. Every individual is so beautiful and so uniquely designed. उनमें कहीं ना कहीं आपको एक यूनिक सी क्वालिटी नजर आएगी, तो उस क्वालिटी को आपको नर्चर करना है. आपके पास टाइम है, आपको एक्सप्लोर करना है, जो बात मैंने पहले कही है, तो वही ये चीज कह रहे हैं. एन स्टैंड फॉर नर्चरिंग दी गुड क्वालिटीज विद इन यू. नाउ डी, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज लाइक वंस यू हैव नो, मतलब आपको पता है कि आपका यही लाइफस्टाइल है और आप ज्यादा सो रहे हैं या ज्यादा खा रहे हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन वाला पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप काम करें, राइट. जब तक ये डिसिप्लिन आप इनकलकेट नहीं करेंगे आपके अंदर, तब तक आप चेंज नहीं ला पाएंगे. किसी भी बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए एक डिसिप्लिन्ड वे में एक्ट करना बहुत जरूरी है. तो ये आप क्लियर हो गया कि डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन. मूविंग फर्दर, ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथी, फीलिंग टुवर्ड्स अदर पीपल. मैंने इसके बारे में पहले ऑलरेडी बात किया है कि आपको आपके आस पड़ोस, आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं या आपके लिए काम कर रहे हैं, या फिर जो वर्कर्स दूर से पैदल चले आ रहे हैं, उनके प्रति थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा. आपको सोचना होगा कि अगर मैं उनके सिचुएशन में रहती या रहता तो मैं क्या करता, राइट. तो ये एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी वाली फीलिंग को आपको एनहांस करना होगा. एम स्टैंड्स फॉर मास्टरी. मास्टरी मतलब आप जिस चीज में चाहे उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं. लाइक आपको कुछ भी क्रिएटिव बनाइए, वॉल पेंट कर दीजिए, कुछ राइटिंग करिए, कुछ पोयम लिखिए, कुछ सॉन्ग गाइए, कुछ रीडिंग करिए, कुछ अच्छा सा लिख के दीजिए. एंड देन यू कैन इवन कुक. बहुत सारी रेसिपीज है यार. जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड जस्ट सर्च एंड यू विल फाइंड सो मेनी रेसिपीज जिनको आप प्रॉपरली कर सकते हैं, और उनमें धीरे धीरे आप स्किल डेवलप करिए और मास्टरी पाइए, राइट. यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ एनीथिंग, राइट. बस यू नीड टू गिव दैट टाइम एंड प्रॉपर प्रैक्टिस. आपको उसके ऊपर एफर्ट करना होगा. विदाउट एफर्ट यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. आई इज इंटेंशन. आप में वो इंटेंशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको करना है. अगर आप में वो इंटेंशन ही नहीं है, तो आपको जितनी भी चीजें करने को दी जा सके या जितना भी आप में कैपेसिटी होगा, आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, राइट. तो यू शुड हैव अ प्रॉपर इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन दैट यस आई एम गोइंग टू डू so many things and these will bring the changes inside me. C stand for connection. Ultimately जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है उसको आपको पॉजिटिवली लेना है, और ठीक है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, बट लोगों से सोशली कनेक्टेड भी रहना है. जैसे आपको अपने पता है स्कूल के समय कितने आपके साथ बच्चे पढ़े होंगे, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपने कभी मतलब बहुत दिनों से कई लोगों से बात नहीं किया है. तो एक बार फोन स्क्रॉल कर लीजिए. जैसे आज मैं उठी और फोन स्क्रॉल करो, आज मैं 4 लोगों से बात करूंगी जो नए रहेंगे, राइट. हफ्ते में आप पाओगे कि आप महीना भर बात करते रह जाओगे. आपके पास कितने कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनसे आप कभी बात ही नहीं करते, राइट. तो वो अगर वो करोगे तो अपने आप आपका टाइम खत्म हो जाएगा. अपने आप आपको पता चलेगा नई नई चीजें. जैसे अभी जो आपकी फ्रेंड सर्कल है वो आपको लिमिटेड चीजें बता पाती होगी, बट जब आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करेंगे तो आपको एवेन्यूज नजर आएंगे. अच्छा ये वो कर रहे हैं, अच्छा ये काम मतलब he or she is doing this thing, oh I should also try, even I was good at it, I should also start doing that thing, so that this positivity can be enhanced and my time can be used most effectively. मतलब अल्टीमेटली आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है. सो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी. जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉजेज हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, या फिर आपके जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसको बदलने की जो मैंने बात की. एंड यूजफुल रहा होगा लेक्चर. विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू. थैंक यू सो मच. Unmuting you is not possible, Apla. Yeah, it's possible. Yeah, thank you so much, Dr. Kushbu, for your very enlightening. I should say it was very enlightening because we never talk about this psychological thing. So it was a very. I have learned so many new things from your lecture, and I especially like the last slide. Change your frame. So this that is was something the USP very of new. the entire presentation. Yeah, so I think you ended it so nicely, and Thank you so much. in your presentation, you have mostly covered all the things. Like you have given us tips and tricks, and you have given us the causes, the consequences, and the tips and tricks, and how to
change our mindset, how to change our perspective. So I think you have wonderfully dealt in details. So, but still, I would like to open this time for Questions, yeah. questions. So, if and if anybody of you have some questions, you can please type in the chat box. So we will open this time for one or two अगर questions. आप में से किसी को कोई भी तरह की क्वेश्चंस है या फिर क्वेरीज है तो आप पुट कर सकते she or he, I'm not knowing. Can you please repeat the tips on pause and look around, right? Like what is happening around you? अभी क्या है ना कि we were in a situation where the life was running. Like you need to wake up, you need to for proper schedule tha, you need to go to your college, come from your college, go for coaching, meet the friends, do some work and then go to sleep. या फिर हम लोगों के लिए था कि we need to wake up, we need to go to our college, teach the students, come back, do some official stuffs and then go back to sleep. Ultimately, we were following a routine which was very monotonous and somewhat the same. अब क्या है ना, we are getting so much of time that we can just stop and think कि what are we doing actually. एक्चुअली क्या करें, कभी कभी हम लोग ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट से थी भी नहीं. कभी कभी आप पाओगे आप एक टीचर बन गए हैं बट आप बनना चाहते थे कुछ और, ठीक है. तो वो चीजों को आपको थॉटफुल रहना है एट दिस स्टेज, एट दिस कॉलेज गोइंग स्टेज. आपको ये चीजें जब आप क्लियर हो जाएंगी, लाइक अभी आप देखोगे कि हाँ भाई मैं क्या बनना चाहती हूँ, अल्टीमेटली मेरा एम क्या है, तो आपके पास इस समय इतनी सादा टाइम है कि आप थॉट दे सकते हैं, सोच सकते हैं. यही चीज कहा जा रहा है कि आपको रुक जाना है, पॉज फॉर सम टाइम एंड लुक अराउंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस विच अराउंड यू. और इनसाइड भी, जैसे सेंटर ऑफ योर माइंड इज लाइक योर सोल, एंड आप अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने लाइक्स डिसलाइक्स को भी देखिए कि भाई मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. इस तरह से वो बात की जा रही थी. होप आपको समझ में आया होगा. आज के संदर्भ में संगीत का महत्व क्या है, डॉक्टर सुमन. ओके, संगीत का अपना ही बहुत महत्व है. लाइक एक हॉबी के रूप में ले लीजिए, या फिर आप कई सारे स्टडीज भी पाए हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाया गया है म्यूजिक एंड उसका. और पेड़ पौधों पे भी आपने देखा है कि व्हेन दे लिसन टू सम म्यूजिक, और कई सारी स्टडीज, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द स्टडीज एज सच, बट उनमें जो ग्रोथ है, जो म्यूजिक सुनते थे उनका ग्रोथ कुछ और ही ज्यादा मतलब ब्यूटीफुली हुआ था. तो ऐसे एज ए इंडिविजुअल भी अगर आपको गाना सुनने की आदत है ना, तो आप पाओगे कि कभी कभी अरिजीत सिंह के गाने के साथ आप बह जाते हैं. व्हेन ही फील्स सैड यू स्टार्ट फीलिंग सैड, एंड व्हेन ही फील्स हैप्पी यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. कई धुन होते हैं, जब क्लासिकल संगीत की बात की जाए तो कई सारे धुन होते हैं जो आपके माइंड को अफेक्ट कर जाएंगे. यू नो द ट्यून्स बेसिकली दैट हिट योर माइंड. when they have to make you party, then they have this kind of noise which is very like active, and when they want to pacify you, then there is a different sort of music. वैसे ही sadness के लिए एक अलग ट्यून है और हैप्पीनेस का अलग ट्यून है. तो कहीं ना कहीं आपके इमोशन से तो कनेक्टेड है ही, और इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है. और इसी तरह से अगर आप गाना जानते हैं तो अपने आप में एक स्किल है आपके लिए अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए. So next question is like, hello ma'am, what if the one whom we need to speak is not interested to speak with us? As you mentioned that we need to keep contact with friends. There are people who are definitely not interested. There may be situations कि आपका और उनके साथ कुछ खटपिट हुआ होगा या फिर some sort of fight हुआ होगा. So nothing matters. You just go and speak to someone else. There is no big issue that you go and speak to that. अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप ऐसे लोग से बात करना चाहोगे जो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप और नेगेटिविटी को जन्म दोगे. तो उस चीज से बचिए एंड ट्राई टू स्पीक. ऐसा यू नो देयर आर 1.3 मिलियन, लाइक बहुत ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में. इंडिया को भी, इंडिया से बाहर जाइए, देयर आर सो मेनी पीपल्स अराउंड इन दिस ग्लोब. तो आप खोजिए, आपको बहुत लोग बात करने को मिल जाएंगे. डोंट जस्ट स्टक टू दैट वन पर्सन कि भाई वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं उसी से बात करना चाहता हूँ. Oh, we have there is got one more question. How I feel motivated and be motivated as a student at home quarantine and avoid wasting time. Yeah, and I also, Kushbu, I also want to add one questions to that. Since you talk about, I think, boredom as a consequences of some psychological issues. So I think most of us feel bored, and I think most of the students also get bored in this
period. So I think it would be good from your side if you can give some more advice or some more suggestions how to not get into that boredom situations. Yeah. What is happening now? When अगर मैं ले पर्सन में बात करूँ कि डेफिनेटली अगर आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप बोर हो जाओगे, राइट? साइकोलॉजिस्ट की तरह बात करो तो डेफिनेटली यू शुड गेट इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ वर्क टू कीप योर ब्रेन एंगेज्ड. अगर आपका ब्रेन, यू कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, आई सपोज इतनी हिंदी समझ में आ रही है बच्चों को, दैट इफ योर ब्रेन इज इनएक्टिव देन इट इज मच हैवॉक, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इट कैन डू डेफिनेटली. तो इस केस में बोर्डम एक रिएक्शन हो सकता है, और बोर्डम इससे होता है ना कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा है. लाइक घर में भी आप मोनोटनी पा रहे कि उठ रहे हैं, खा रहे हैं. ट्राई टू डू द थिंग विच यू आर नॉट डूइंग. जैसे रहता है कि कोई कह रहा हो कि प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस हाउस होल्ड कोरस, आप बोलते नहीं 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 हम नहीं करेंगे, मैं ये काम नहीं करती थी, ठीक है, मैं खाना नहीं बनाती थी, राइट? मम्मी बनाती थी, मम्मी बनाएंगी, राइट? तो उस केस में आपको बोर लगेगा क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है. आप उस समय कॉलेज जाया करते थे, पढ़ा करते थे, दोस्तों से मिलने जाया करते थे, बट अब कुछ काम ही नहीं है तो आपको बोर ऑब्वियसली फील होगा. इस केस में अपने जो फिक्स शेड्यूल थे उसको ब्रेक करिए और एक नया शेड्यूल बनाइए इस दौरान के लिए, जो कि आपको जो खाली समय आपको दिख रहा है उस स्लॉट्स को आप फिलअप कर पाए, तो आपको बोर्डम वैसे ही नहीं महसूस होगा. इट वाज वंडरफुल लिसनिंग टू यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. या for now I'm pausing these question and answer session. In case you have any doubts or any questions, you can post it to Aplang ma'am, or to me personally. You can have my contact number and WhatsApp me so that I can answer it personally. I'll be very, very, very happy to do so. Miss Apila. I'm not able to unmute you, Miss Apilang. Yeah, okay, yes. All right, thank you so much, Kushbu, for giving your time for us. I see, as Dr. Kushbu, she was talking about connecting. So like we are also in this is also a way of connecting to each other. So like we all have to, we are connecting once again. So we met in our orientation course in Hyderabad, and we stayed together for 21 days and we became good friends. Thank you so much. I really owe your friendship, and like I think I'm really thankful to the Hyderabad University also for giving us an opportunity to meet. And thank you so much all the people who joined us. And yeah, thank you so much, Dr. Rinkoilu Chai. She is my colleague. So thank you so much for joining. Thank you so much for joining, and thank you so much for joining Brother Andy. Andy is he is one of my mentor. He is senior to me. So yeah, thank you. He is one of my mentors. So thank you so much, and all the students, thank you so much for participating. Thank you, students. And thank you so much for all the people whom I don't know from all across the country for joining us in this event. So maybe as Dr. Kushbu has said, that you can, if you have any more doubts, then you can text your questions to me, or maybe I'll get, and then I can share that all the questions to her. So thank you so much. Thank you so much. So we will be stopping this webinar here. Thank you so much for all your time. Thank you. With all your permission, we are ending this meeting and hope to see you all soon. Bye-bye. Yes, bye-bye.